میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا، اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سوری، آئی ڈنٹ انٹینڈ ٹو ٹیک اینی کوشچنس ٹوڈے۔ میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے، اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ گزشتہ روز ایک بیان دیا گیا، کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی گئی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا، اور ایک اور موقع پاکستان کی جانب سے امن کا دیا گیا تھا۔ دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آیا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں ہزیمت اٹھائی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ افواج پاکستان ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کی ہمت رکھتی ہے، یہ ایک منظم ادارہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر بابر افتخار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی گئی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز ایک بیان دیا گیا جس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی گئی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا تھا۔ دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آیا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا۔ پلوامہ واقعے میں بھارت نے نہ صرف منہ کی کھائی بلکہ پوری دنیا میں
हजीमत का सामना भी उसको करना पड़ा। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। इसके अलावा DGISPR का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म इदारा है और हर किस्म के चैलेंज से निमटने की हिम्मत रखता है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहना था DGISPR का। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंज से निमटने की हिम्मत रखती है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि एक नाकाती एजेंडा है, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करना चाहता हूं। और उनका ये भी कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया गया था जिसमें तारीख को मसख करने की बात की गई। अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक गया। पुलवामा वाक़े में भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में उसको हजीमत का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया था। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था और हमने दिन की रोशनी में उनको जवाब दिया था और पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम भी किया गया। भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि दुनिया में हजीमत भी उठाई। आपको बताएं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिनमें उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। और उनका ये भी कहना था कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसख करने की बात की गई और इसीलिए वो बात करना चाहते हैं। और उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक गया। और इसके अलावा उनका कहना था कि पुलवामा वाक़े में भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत भी उठाई और पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में इसका जवाब दिया था और पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम भी किया गया था। और भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि दुनिया में हजीमत का सामना भी उसको करना पड़ा। पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है और फ़ौज की क़यादत और अफवाज में दरार नहीं डाली जा सकती। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी और उनका आते साथ ही ये कहना था कि एक नकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करने आया हूँ। उनका कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी थी और इसके अलावा उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसख करने की बात की गई। इस पर उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया था और पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया था। फ़ौज की क़यादत और फ़ौज में दरार नहीं डाली जा सकती। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा क्योंकि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती की तारीख मसख करने की कोशिश की गई। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था और हमने दिन की रोशनी में उसको जवाब दिया था। पाकिस्तान की फतह को इसके बाद दुनिया ने भी तस्लीम किया था और भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा था। दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक गया। पुलवामा वाक़े की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत उठाई और पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में इसका जवाब दिया था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और उन्होंने आते साथ ही कहा कि एक नकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए वो बात करने आए हैं और सहाफ़ियों से सवालात लेने से भी उन्होंने इनकार किया। और उन्होंने कहा कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसख करने की बात की गई और पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी थी। और उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को
नाकाम बनाया था और इसके बाद पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने भी तस्लीम किया था। भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई थी बल्कि दुनिया में हजीमत का सामना भी उसको करना पड़ा था। कल ऐसा बयान दिया गया जिससे कौमी सलामती की तारीख मसक करने की कोशिश की गई। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था और हमने दिन की रोशनी में उसका जवाब दिया था। पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने भी तस्लीम किया था। भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि दुनिया में उसको हजीमत का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज की क़यादत और फ़ौज में दरार नहीं डाली जा सकती। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और फ़ौज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखता है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुँह की खाना पड़ी थी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि एक नकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करना चाहता हूँ। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुँह की खाना पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया गया। ये कहना था उनका कि इस बयान में तारीख को मसक करने की बात की गई। अफ़वाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर चला गया। अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया था। अभिनंदन की रिहाई किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है, ये कहना था DG ISPR का। और उनका ये भी कहना था कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिससे कौमी सलामती की तारीख को मसक करने की कोशिश की गई। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और हमने दिन की रोशनी में उसका जवाब दिया और इसके बाद पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम भी किया गया था। भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि दुनिया में हजीमत भी उठाई, ये कहना था DG ISPR का। और पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई है। फ़ौज की क़यादत और फ़ौज में दरार नहीं डाली जा सकती, ये भी कहना था DG ISPR का। और उनका कहना था कि अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया और अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंज से निमटने की हिम्मत रखता है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुँह की खाना पड़ी थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी और एक नकाती एजेंडा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और अभिनंदन के हवाले से जो कल एक बयान सामने आया था उसी के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बयान को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। हम तो असल में कल से हैरान थे जो अयाज सादिक साहब ने बात की, क्योंकि एक ऐसी बात जिसको सारी दुनिया ने देखा, सरेआम देखा और साथ ही साथ हमारी अपनी कौम को भी मालूम था, हिंदुस्तान को भी मालूम था। आपको पता है कि वहाँ पर कितनी चीखों पुकार हुई उस शिकस्त के बाद, भारत की शिकस्त के बाद उन्होंने कितना पूछताछ की और किस तरीके से उनका जो एयर चीफ था उसको तुक्की का सामना करना पड़ा, बल्कि उसको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सामने होने के बावजूद ये तो हैरत होती है कि हमारे लोग ऐसी क्या कैसे ये बात कर लेते हैं। उन्होंने तो खैर बिल्कुल बात क्लियर कर दी है, उस पर तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साफ ज़रा हमारा जवाब जिस तरीके से गया, दिन दिहाड़े गया। फिर जब आपने पकड़ लिया उनका एक हवाबाज, तो आप देखिए कि जब अखाड़े में कुश्ती होती है तो जब एक पहलवान की कमर लग जाती है, जिसको कहते हैं, उसको जब चित कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर आप बैठे रहे या उठ जाए, वो तो बात एक ही है। बड़ा क्लियर हो जाता है कि कौन हार गया और कौन जीत गया। तो हार और जीत का फैसला तो उसी दिन हो गया था। उसके बाद पूरे मीडिया ने कवर किया, दुनिया के मीडिया ने कवर किया और वो हमारे पास मौजूद था, हमारे कब्जे में था। हमने उसको बाकायदा बॉर्डर पे हवाले किया, अगेन पूरे मीडिया ने देखा। इसमें पता नहीं कहाँ की कोड़ी ले आए और क्या उन्होंने बात की, बड़ी हैरत होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बात को आगे जाना चाहिए। अयाज सादिक साहब और इन जैसे जो लोग हैं, इनको किसी भी सूरत में दोबारा कौमी असम्बली का मेंबर या किसी भी ऐसी जगह के मेंबर नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान में कोई इनको ऐसा ओहदा नहीं दिया जा सकता जहां पर के कोई जिम्मेदारी इन पर डाली जाए। ये इस काबिल नहीं है कि ये कोई भी जिम्मेदारी उठा सकें अपने कंधों पर।
ये तो एक बंदे की परस्तिश करने लगे हुए हैं। उसने जो कह दिया वो उनका खुदा बन गया है, जो उसने कह दिया बस वही इनका बयानिया है, आंखें बंद कर और अब इन्होंने तो अपना पाकिस्तान की सालमियत को भी बेच दिया, अपना ईमान भी बेच दिया, झूठ और सच भी बेच दिया। अब इन लोगों पर क्या एतबार करना है? ठीक है सर, कल से इंडियन चैनल्स पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता इस तरह के बयानात से जो दुश्मन है उसको मौका मिल जाता है बात करने का? जी साहब ज़ाहिर है, देखिए मैं तो हमेशा कहता था कि मैं कभी भी मैंने नहीं कहा ये बात कि कोई हमारा जो जितने भी बाज़त लोग हैं इसमें सियासत में, उनमें से कभी भी मैं नहीं कहता और उसको अच्छा भी नहीं समझता कि कहा जाए कि वो दुश्मन के आलाकार हैं या वो उनके ईमा पर बोलते हैं। लेकिन ये इस दफ़ा तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो एक कम अज कम सहूलतकार का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है उनके लिए, कि ऐन वो बात जो दुश्मन कह रहा था और उनके अपने लोग नहीं मान रहे थे वो आपने कहना शुरू कर दी, तो अब दुश्मन ने तो खुश होना ही है, उन्होंने तो ढोल बजाने हैं और यही कल से उनका मीडिया कर रहा है। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी हैरत हुई हमें, लेकिन सिर्फ हैरत और अफसोस काफी नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि अदालतों के जरिए इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहिए आइंदा किसी भी ओहदे के लिए। ठीक है सर, कल इस बयान के साथ साथ कुलभूषण के बारे में भी कहा जा रहा था कि कुलभूषण के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुलभूषण हमारे कब्जे में है, हमारी कैद में है, जिससे आपको पता सजाए मौत उसको ऑलरेडी हो चुकी है FGCM से। उसके पास 2 अपीलें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, एक वो प्रेसिडेंट को क्लेमेंसी की अपील कर सकते हैं, यही उनके पास हल है और कोई है नहीं। तो वो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगा। आपने देखा कि कितना जोर लगाया भारत ने कि हमें जो ना हमारा वकील उनका केस लड़ेगा। पाकिस्तान अपनी जगह पर खड़ा है। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम पाकिस्तानी वकील ही आप हायर कर सकते हैं और वही होगा। इसीलिए कुलभूषण को पता है सारे मामला का, उसको पता है कि भारत खाम खा बात को लंबा करना चाह रहा है, उस पर अपनी वो बनाना चाह रहा है साथ बिला वजह की। इसलिए उसने कहा है कि मैं तो सीधा मुझे कोई एक्सेस नहीं चाहिए, कौंसलर एक्सेस, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मैं तो अपील दायर करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये कुलभूषण खुद जो कि अफेक्टेड बंदा है वो भी समझ गया है भारत की चाल, और ये फिर वही बात कर रहे हैं, वही बयानियां कर रहे हैं जो कि भारत का बयानिया है। हैरत अंगेज बात है। सर, हमने देखा जिस तरह के पुलवामा वाक़े की DGISPR ने भी बात की और हमारे सामने भी पुलवामा वाक़या था कि जो मोदी था ये उसने खुद ही बनाया और इल्ज़ाम जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान पे लगा देता है और उसको पूरी दुनिया में हज़ीबत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर भी वहाँ से इंडियन जो चैनल्स हैं या जो गवर्नमेंट है वो बाज नहीं आ रही। जी देखिए, वो तो सारा ड्रामा भी बिल्कुल सामने, बल्कि वो वाज़ेह भी हो गया बाद में जब उसकी तहकीकात उससे भी पता चल गया। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए, अपने खानदान के लोगों को मुकदमों से बचाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के दाव पे लगा देते हैं, पूरे कौमी एजेंडे को दाव पे लगा देते हैं, उनका इसके सिवा और क्या हल है कि कौम उनका मुआवजा करे और कानून उनका मुआवजा करे और कम अज कम ये उन पर बिल्कुल अया कर दे कि आपके हाथ में हम दोबारा कभी इस मुल्क की बागडोर नहीं देंगे, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इस मुल्क का बयानिया संभाल सकें, आप इस मुल्क को आगे ले जा सकें। आप तो दुश्मन के साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा मैं तो फिर भी कहता हूँ कि मैं अभी भी नहीं मानता इस बात को कि वो उनके आलाकार हैं या उनके एजेंट हैं या जो भी है। लेकिन अब ऐसा इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई एक बात होगी, दूसरी बात होगी। अब इस तरीके से अगर ये बातें बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर तो ये जो है शक है यकीन में बदल जाएगा। ये तो लोग ही वो हैं और वहीं से सब कुछ इनको फीड हो रहा है, सब कुछ इनके मुताबिक चल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ और मानने को दिल ही नहीं चाहता सिवाय इसके कि बिल्कुल उनके सहूलतकार हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक कर चला गया। और पुलवामा वाक़ये की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में उसको हजीमत का सामना भी करना पड़ा। और अभिनंदन की रिहाई किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन है। ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान पर किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहना था DGISPR का। आपको बताया कि DGISPR अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिससे कौमी सलामती की तारीख मसक करने की कोशिश की गई और भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और हमने दिन की रोशनी में उसको उसका जवाब दिया था। और इस पे पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम भी किया था, जबकि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और फ़ौज की क़यादत और फ़ौज में दरार नहीं डाली जा सकती। अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया और अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन है। ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान पर किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहना था DGISPR का। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म इदारा है और हर किस्म के चैलेंज से निमटने की सलाहियत भी रखता है। उनका कहना था कि पुलवामा वाक़ये में भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत का सामना भी करना पड़ा। उनका कहना था कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसक करने की बात की गई थी। अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया था। DGISPR का कहना था कि एक नकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करना चाहता हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, DGISPR ने बुनियादी तौर पर दो मामलात को एड्रेस किया है। एक, उन्होंने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने जो कल कौमी असेंबली में बताया था कि अभिनंदन को कैसे छोड़ा गया और किस तरह हमले की धमकी आई थी, उसको उन्होंने निगेट किया है। और दूसरी बात जो नवाज शरीफ साहब कुछ फौजी शख्सियात के नाम लेकर कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं मुल्क के अंदर सारे बहरान के, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि फौज एक इकाई है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने इसमें बयान की हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि DG साहब को खुद आना पड़ा है सामने इस सारी सूरत हाल के दिफा के लिए। और कौमी असेंबली के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई जिसके पेश नज़र फिर ये बयान दिया सरदार अयाज सादिक ने, वो तमाशा आपके सामने है कि अपोजिशन जब भी खड़ी होती है किसी पर मोदी का यार, किसी पर कुछ और, किसी पर डिफरेंट इल्जाम। अयाज सादिक ने कल वाला बयान आज अपने वीडियो पैगाम में रीट्वीट किया, वो उस पर कायम है किसी तरह से हुआ था। और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी खबरें उस वक्त भी आई थी जो पाकिस्तान में इस तरह से फ्लैश नहीं हुई, लेकिन ये जिक्र आया था। फिर इस लड़ाई का जो एंड है वो सबूत कश्मीर की सूरत में निकला है। अगर हम देखेंगे नतीजा क्या निकला, वो सबूत कश्मीर था अल्टीमेट। तो ये भी एक पहलू है इसका। तो DG साहब को खुद आना पड़ा सामने, इसका मतलब है कि ये मामला जो है बड़ा सीरियसली मुसल्लह फौज की सतह पर भी इसको समझा जा रहा है और लिया जा रहा है और ले जाना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि इसके बहुत सारे सियासी पहलू हैं पाकिस्तान के हवाले से, इम्प्लीकेशन है पॉलिटिकल रिस्क। कौमी असेंबली के अंदर ये गुफ्तगू हुई थी और PDM की जो जमातें हैं उनमें से ज़्यादातर जमातों के जो अरकान हैं वो इस वक्त भी जैसे असेंबली में बैठे हुए हैं, तो इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हैं, इसके जवाब आने शुरू हो गए तो फिर ये पंडोरा बॉक्स खुलता ही जाएगा। तो होता तो यूँ कि कुछ हुकूमत की तरफ से वजाहत कर दी जाती, लेकिन लगता ऐसे है कि हुकूमत की जानिब से तो जायज़ मुसल्लह फौज को भी अभी अंदाजा हो गया कि ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा नहीं है जो अपोजिशन की बातों का जवाब दे सके मुदल्लल अंदाज में या उस पर लोग एतबार कर सकें। तो इसलिए DG साहब को आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी सूरत हाल बहरहाल नहीं है। ठीक है सर, कल से इंडियन चैनल्स पे भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस बात का हवाला भी DGISPR ने दिया। तो आपको नहीं लगता सर कि कल के सरदार अयाज सादिक के जो उन्होंने बयान दिया था उस पे इस तरह का रद्द-ए-अमल आना अफसोसनाक है? जो एक दुश्मन मुल्क है
اس کے ہاتھ کو ایسی چیز لگے گی جس سے اس کا بیانیہ ہے. اگر آپ یاد کریں اس وقت ابھینندن کو ہم نے چھوڑا تھا اور یہ بتا کر چھوڑا تھا کہ ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت یا جنوینا کنونشن کے تحت یا جس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی انڈین میڈیا دیکھا ہوگا وہ جشن منا رہے تھے کہ ہم نے ود ان نو ٹائم اپنا بندہ واپس لے لیا. اس وقت بھی یہی کیفیت تھی, وہاں جشن تھا. ہمارے ہاں ایک اور پہلو تھا اور انڈین میڈیا میں بالکل اس کو الٹ چل رہا تھا. ہم اپنی فتح منا رہے تھے, وہ اپنی فتح منا رہے تھے. یہ تو چلے ایک معاملہ ہوتا. اچھا پھر جب ایاز صادق صاحب نے یہ بیان دیا کل قومی اسمبلی میں اور اس کو آج انڈین میڈیا چلاتا رہا, تو اس میں آپ کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ قومی اسمبلی کے اندر جب کوئی بندہ کھڑا ہو اسے آپ کہیں کہ آپ مودی کے یار ہیں, آپ کلبھوشن کے یار ہیں, آپ جو بھارت کے لیے بہت ساری جو سافٹ چیزیں وہ کرتے ہیں, وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کشمیر بیچ دیا. چلو خواجہ حسن خان کا کشمیر فروشی ہوئی اینڈ ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے وقت کا شکریہ. آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس جاری تھی اور پریس کانفرنس شروع کرتے ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور فوج کی قیادت اور فوج میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. ان کا کہنا تھا کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس سے قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا تھا اور ہم نے دن کی روشنی میں اس کو جواب دیا تھا اور اس پہ پاکستان کی فتح کو دنیا میں تسلیم بھی کیا گیا تھا اور اسے بھارت نے نہ صرف منہ کی کھائی بلکہ دنیا میں ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور پاکستان کی فتح کو ایک بیان سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. فوج کی قیادت اور فوج میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. ابھینندن کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کیا گیا. ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی گمراہ کن ہے. یہ چیز کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. ایک بیان کو بھارت میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے منفی بیانیے کے قومی سلامتی پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستان پر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے اور ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کی ہمت رکھتا ہے. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی گئی تھی. افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا تھا اور دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آیا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلا گیا اور جنیوا کنونشن کی بنا پر ابھینندن کو رہا کیا گیا تھا. پلوامہ واقعے میں بھارت نے نہ صرف منہ کی کھائی بلکہ پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی. پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں اس کا جواب دیا تھا. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی اور دنیا بھر میں ہزیمت کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے اور ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کل ایک بیان دیا گیا جس سے قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اسی پہ انہوں نے کہا کہ بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا تھا اور ہم نے اس کا جواب دن کی روشنی میں اس کو دیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم بھی کیا تھا اور بھارت نے نہ صرف منہ کی کھائی تھی بلکہ دنیا میں ہزیمت بھی اٹھائی تھی. پاکستان کی فتح کو ایک بیان سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. فوج کی قیادت اور فوج میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. ابھینندن کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کیا گیا. ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی گمراہ کن ہے. یہ چیز کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. ایک بیان کو بھارت میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے منفی بیانیے کے قومی سلامتی پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستان پہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے اور افواج پاکستان ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کی ہمت رکھتا ہے اور کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس سے قومی سلامتی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا تھا اور ہم نے اس کا جواب دن کی روشنی میں اس کو دیا اور اس کے بعد پاکستان کی فتح کو دنیا نے بھی تسلیم کیا اور بھارت نے نہ صرف منہ کی کھائی بلکہ دنیا میں ہزیمت بھی اٹھائی تھی. پاکستان کی فتح کو ایک بیان سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. فوج کی قیادت اور فوج میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. ابھینندن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھینندن کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کیا گیا تھا
और अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन बात है। ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पुलवामा वाक़ये में भारत ने न सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में हज़ीमत उठाई। दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक गया। अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनका कहना था कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसक करने की बात की गई थी और उन्होंने कहा कि भारत ने जो हमला किया था और पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम भी किया गया और भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। अभिनंदन के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया और अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन अमल है। आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि एक नकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करना चाहता हूं। पुलवामा वाक़ये के बाद भारत को मुँह की खानी पड़ी थी और कल एक ऐसा बयान दिया गया था जिससे कौमी सलामती की तारीख मसक करने की कोशिश की गई थी। उनका कहना था कि भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था और हमने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया था और दिन की रोशनी में उसका जवाब दिया था और इसके बाद पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम भी किया गया। भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई बल्कि दुनिया में हज़ीमत भी उठाई। पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जनरल बाबर DGISPR ने बहुत वक्त पे बहुत अच्छा बयान दिया है, सारा जो बताया। बात यह है इस वक्त पाकिस्तान में जो आम सारे पाकिस्तानियों को समझने की बात है, दो बड़े इश्यूज हैं। एक है कि पाकिस्तान की और भारत की जंग चल रही है जो एक्चुअली तो 1947 से पहले की स्टार्ट हुई, बट अब एक बड़े लेवल पे भारत ले गया है। आपने देखा बलूचिस्तान में कितनी दहशतगर्दी हुई, हमारे सोल्जर शहीद हुए, हमारे बच्चे वहां शहीद हुए अभी मदरसों में और बाकी जगहों पे जो भारत करा रहा है। एक तो ये बात है और इसके अलावा LFC पे और अभी धमकियां देना, अजीत डोभाल का स्टेटमेंट और एक उसके मिनिस्टर का यूपी के चीफ का कहना इंडिया के कि जी भारत ने मोदी ने पाकिस्तान पे हमला करने की तेज तारीख का भी तयन करनी है। तो ये क्या है, ये जंग है ना, उसी के मुख्तलिफ कड़ियां हैं। एक तो ये जंग है, दिस इज वन वॉर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सियासी महाजराई बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन है वो इतनी लेवल पे पहुंच गई है कि वो एक लड़ाई लगनी शुरू हो गई है, विच शुड नॉट। क्योंकि सियासत को और कौमी इंटरेस्ट को या नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आप मिला नहीं सकते, वो अलग होती हैं। मैं पहले भी मिसाल दी थी, दोबारा देता हूं कि अमेरिका में ये जो इलेक्शन हो रहा है अभी 3 नवंबर को, उसको कहते हैं कि जी बहुत डिसाइसिव इलेक्शन है ट्रंप और जो बिडेन के दरमियान, और हर किस्म की बात एक दूसरे के खिलाफ की गई है उनकी, हर चीज उसने एक दूसरे को कहते हैं, वो कोई उसको बुरे से बुरा लफ्ज कहते हैं एक दूसरे को। लेकिन अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं या अमेरिका की अंदरूनी भी और अमेरिका की बैरूनी, उसके ऊपर कोई बहस नहीं है, उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं है उनकी, ना हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की सूरत पैदा हो जाएगी तो पॉलिटिकल सिस्टम तो खुद ही फेल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल ये सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान का है वो उसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलनी है इस तरह तो चल ही नहीं सकती। जो अभी हालात बनते जा रहे हैं जिस स्पीड पे तेजी जा रहे हैं, और ये जाहिर है ये चलता रहेगा तो सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या निजाम आएगा या क्या आना चाहिए वो तो अलग एक डिस्कशन और बहस है, वो अलग है। बट इस वक्त दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज गोइंग, इसका जो एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तजिया करने के अलावा किताबें भी लिखता हूँ और भी बहुत चीजें करता हूँ, पेशेंट गोइयां भी करता हूँ। तो बात यह है कि ये सियासी निजाम तो खत्म हो जाना है जो ये अभी चल रहा है पाकिस्तान का, अगर ये सिलसिला चलता रहा जो अभी चल रहा है। और हम एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट में ये कह चुका हूँ, पाकिस्तान को एक नया निजाम चाहिए, नहीं चाहिए। हम तो पहले ही कहते थे चल नहीं सकता, क्योंकि वो निजाम जिसमें आम पाकिस्तानी की रोटी पानी और बाकी बच्चों की फीस और दुआएं और बाकी जरूरी जिंदगी पूरी ना हो, जिसमें मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, वो निजाम चलेगा कैसे? सो वी आर हेडिंग फॉर a system which is going to be totally different from this. This is my view on this.
ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका यही कहना था कि एक नकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए वो बात करना चाहते हैं। और इसी पर उन्होंने कहा कि भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था और पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया था और भारत को मुँह की खानी पड़ी थी और दुनिया भर में हज़ीमत का सामना उसको करना पड़ा था और पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया था। उनका कहना था कि कल एक ऐसा बयान दिया गया था जिससे कौमी सलामती की तारीख को मसक करने की कोशिश की गई थी और इस पे उन्होंने कहा कि अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के बिना पर रिहा किया गया था और ये भी कहा कि फ़ौज की क़यादत और फ़ौज में दरार नहीं डाली जा सकती है और ये भी कहा कि अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन है और ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती है। एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान पर किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी थी और कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसक करने की बात की गई। अफ़वाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म इदारा है और हर किस्म के चैलेंज से निमटने की हिम्मत रखता है। अफ़वाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम भी बनाया था और दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया था और दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक कर चला गया था। अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के बिना पर रिहा किया गया था और पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में इसका जवाब दिया था और पुलवामा वाक़े में भारत ने ना सिर्फ मुँह की खाई थी बल्कि पूरी दुनिया में उसको हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा था। आपको बताएं कि DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने कबूल किया था और भारत ने ना सिर्फ इसमें मुंह की खाई बल्कि दुनिया में हज़ीमत भी उठाई थी। पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे मनफी बयानी के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं और एक बयान को भारत में प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती है। अभिनंदन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया था। इकहत्तर साल एक जुमला, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में अमन आएगा, मईशत बेहतर होगी। कब होगा ये सब? मुल्क की आबादी का 65%, कौम का मुस्तकबिल यानी 14 करोड़ नौजवान, 28 करोड़ हाथ जो उठे तो मुल्क की तकदीर बदल डाले। जज्बों का एक समंदर